اچھا جی، شان رمضان آپ جانتے ہیں بدلتے جس طرح زندگی کے بدلتے موڈز ہوتے ہیں، بدلتے رنگ ہوتے ہیں، بدلتے مزاج ہوتے ہیں، اور شان رمضان ہماری آپ کی سب کی زندگیوں کا ایسا ہے. تو یہ بھی نشریات ایسے ہی ہے جس میں ہم ایک لمحے کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اگلے لمحے اداس بھی ہوتے ہیں، کبھی زار و قطار روتے بھی ہیں، کبھی کھلکھلا کے ہنستے بھی ہیں. یہ سیگمنٹ ایک ایسا ہی سیگمنٹ ہے جو کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد کا لفظ کہتے ہیں، مجھے سچی بات ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں گے. اپنا فرض ہم ادا کریں، اپنے حصے کی شمع جلائیں. اس سیگمنٹ کو ہم نے نیکی کا عنوان دیا ہے. جو آج کے مہمان ہیں اور ان کا جو ادارہ ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اور اللہ نے بہت کامیاب کرے. باقاعدہ تعارف کرائیں گے اقرار بھائی. اس سے پہلے یہ بھی سنیجیے، ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک آپ سمجھ لیجئے کہ بن گیا ہے ایزی ڈونیشنز والا بینک. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایزی پیسہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے لٹرلی 60+ آرگنائزیشنز کو آسانی سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ. تو ایزی پیسہ ایپ کے ذریعے آپ 60+ آرگنائزیشنز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ ہر ڈونیشن پر ایزی پیسہ 50% اضافی رقم اپنی طرف سے ایڈ کرے گا. تو اگر آپ لاکھ روپے دے رہے ہیں تو 50,000 ایزی پیسہ کی طرف سے ایڈ ہو جائیں گے. 100 روپے دے رہے ہیں تو 50 روپے، 10 لاکھ، مطلب اب جو بھی. تو یہ سلسلہ ہے. میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ آج کے مہمان کا میں تعارف کراؤں، لیکن میں چاہتا ہوں اقرار بھائی ذرا آپ باقاعدہ کرائیں کہ کیا بات ہے ان کا. اور کیا ایسا ہی ہے میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک اور نیکی سیگمنٹ کا اس سے خوبصورت اور بہتر آغاز ہو نہیں سکتا. جو شخصیت اور جو ادارہ جس کو ہم متعارف کروانے جا رہے ہیں، ہم سب کا مان ہے، ہم سب کا فخر ہے. جس طرح سے پاکستان میں دکھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے یہ ادارہ، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں انڈس ہاسپٹل جو نیٹ ورک ہے اس کی شاید ہی کوئی اور نظیر اور کوئی اور مثال ہے. اور جو شخصیت اس نیٹ ورک کی روح رواں ہے، پریزیڈنٹ ہیں انڈس ہاسپٹل کے جناب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. ہم سب ان کے معتقد ہیں، عقیدت مند ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور بہت فخر سے ان کی طرف دیکھتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اتنی خوبصورت بات کرنے کا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. جی ہم سب اللہ کا ساری عمر بھی سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا حصہ بنایا وہ ہم سے یہ کام دے رہا ہے. اور انڈس کا سالانہ بجٹ کہاں تک پہنچا ہے یہ بتا دیں. یہ مجھے ہر سال کیوریوسٹی رہتی ہے اب یہ کہاں تک پہنچا. اب یہ 61 بلین پہ آ گئے. 61 ارب روپے تک آ گیا. ہم نے جب شروع کیا تھا تو چند سال بعد 15 ارب روپے ہمیں لگتا تھا کہ اللہ اکبر اتنا بڑا، اور آج ہم 60+ پہ کھڑے ہیں. 60+ اور یہ اس کے علاوہ ہے جو ابھی حالیہ اسپتال کی عمارت بنی اور جو باقی وہ یہ سالانہ آپریشنل بجٹ ہے. اور اس میں جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے تو دیکھیں پچھلے 18-17 سال تک ہم جو پرانے ہاسپٹل میں تھے تو 1 لاکھ اسکوائر فیٹ پہ تھا. اوکے. اور ابھی جو نیا ہاسپٹل جس میں ہم جا رہے ہیں وہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ پہ ہے. کیا بات ہے. صرف 300 بیڈ کو میں نے وہاں موو کیا تو میرا خرچہ 1 ارب سے 1.25 ارب روپے مہینہ ہو گیا. صرف کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. تو ابھی جو 1.5 ارب پہ چلا گیا ہے کیونکہ ہم 500 بیڈ پہ آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ جون میں ہم جو ہے نا 700 بیڈ پہ جائیں گے. ابھی 500 بیڈز جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکے ہیں نئی عمارت میں. نئی عمارت میں آپریشنل ہو چکے ہیں. جون میں 700 بیڈ ہو جائیں گے، دسمبر میں 1000 ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی 1350 ہو جائیں گے ٹوٹل. انشاءاللہ مارچ 2027 میں یہ پورا مکمل ہو جائے گا 1380 بیڈ کے ساتھ، اور یونیورسٹی بھی آپریشنل ہو جائے گی. اور ڈاکٹر باری تقریباً 6 ملین لوگ سالانہ مستفید ہو رہے ہیں اس وقت. یعنی میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا ہمارا پچھلے سال کا تو اب بڑھ رہا ہے. تو جیسے یہ ہے نا کہ لاہور کا ہاسپٹل 100 بیڈ پہ تھا وہ 200 ہو گیا. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک 600 بیڈ پہ وہ بھی چلا جائے. اور پھر ہماری جو کلینکس ہیں وہ بھی 110 سے زیادہ ہو چکی ہیں. پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں 87 ڈسٹرکٹس میں ہماری موجودگی ہے ماشاءاللہ. اور 12 ہاسپٹلز ہیں پورے. اب جو ہے نا کوئی 15 کی طرف جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نمبر اتنی تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، تبدیل ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی ایک ہاسپٹل. تو بلا شبہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیلتھ نیٹ ورک جو کہ 87 ڈسٹرکٹس میں ہے، 15 کے قریب ہاسپٹلز ہیں، 60 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے، 60 لاکھ سے زائد لوگ سالانہ مستفید ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور بہت ساری نیک تمنائیں. اب یہ بتائیے چیلنجز کیا ہیں ڈاکٹر باری؟ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے دامے درمے سخنے بات کر کے ڈونیشن دے کے عملی طور پر وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ الحمدللہ یہاں پہنچنے میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، مریضوں کی دعائیں
और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये कौम करती है, और इसको मैं समझता हूँ कि ये हमारा नहीं है, ये पूरी कौम का है, और हर एक ने इसका, ये एक तहरीक है, एक फ़लसफ़ा है जिसके अंदर, और इसमें कोई बहुत बड़े पैसे नहीं चाहिए होते हैं। आप रोज़ाना आपको सदका करना होता है, वो सदका बलाओं से टालता है। सही। और यूके में तो मैं कहता हूँ बस पाउंड अ डे कर दो और डायरेक्ट डेबिट आप कर दें, तो इस वक्त कोई 70,000 पाउंड जो है ना हमारा जो है ना माहाना सिर्फ इसी से आ रहा है। अच्छा, जो रोजाना का 1 पाउंड दे रहे हैं ये 1 पाउंड से 5 पाउंड महीना, 10 पाउंड महीना। तो एक तो ये है कि वो करें, इस पैगाम को आगे फैलाएं। दूसरा मेरे सबसे लोगों से ये है कि हमारा प्राइमरी केयर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम लोग वो ना करें, यानी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि इतना बीमार हो जाए कि उसे हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल में जाए। जैसे हमारा अभी जो है ना, हमने डायबिटीज़ के ऊपर, आप पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हर चौथा पाकिस्तानी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग डायबिटिक पॉपुलेशन है अनफॉर्चुनेटली। तो उसको ऊपर अब हम डायबिटीज़ के ऊपर डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने पूरा एक इंतज़ाम है कि हम कोई 3,000 क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में शुरू करेंगे, ताकि हम लोगों को वहीं पर उनको कंट्रोल कर दें, ताकि ना दिल की बीमारी हो, ना गुर्दे ख़राब हों, ना आंखें ख़राब हों, ना फालिज के अटैक हों। राइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। ये ज़ाहिर है ओवरऑल जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन आएगा वो कम से कम हो जाएगा अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर कर लें। अब जो डोनेशंस की अगर हम बात करें तो इसलिए भी कि ज़रा थोड़ी सी हौसला अफजाई हो, जो लोग इंडस का साथ देते हैं, इदारे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ आता है, इंडिविजुअल्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज या उस एतबार से थोड़ा सा अगर आप उसको बता देखें। जो एक अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन ज़्यादा जो है ना इंडिविजुअल्स होते हैं। और अगर मैं देखूं, और इदारे भी बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट का भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की सपोर्ट, सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे पास बहुत है। यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो है ना एनुअल रिकरिंग ग्रांट भी होता है, वो हमारे बिगेस्ट पार्टनर है, आप समझ लें। जिसके अंदर एक्सपेंशन में भी उनका काफ़ी बड़ा मतलब 80 अरब रुपए की कराची की बिल्डिंग है, उसमें से 18 बिलियन सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा जिंदाबाद। और फिर एक रेगुलर उनका सालाना भी बजट हर साल बढ़ जाता है, जैसे हमारी ज़रूरियात बढ़ रही होती हैं। तो उनको भी अंदाज़ा है कि हम एक काम कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है, सारी दिखाई दे रहा है, तो वो भी करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान और एक्सपेट पाकिस्तानियों को देखूं तो ये 30-70 का रेशियो है। 70% अभी भी पाकिस्तान से अच्छा 30% बाहर से होता है। मैं उनसे कहता हूं, लेकिन अगर नंबर्स देखें 30% के एतबार से तो बहुत है बाहर का, जितने लोग बाहर कम हैं जितने हैं। लेकिन बात ये कि उसमें एक हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज में पैसा पड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो वो डॉलर का जो रेट आगे पीछे है उसके असरात नहीं आते। अगर वो ना होता तो अभी पिछले 2-3 साल में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था पाकिस्तान के अंदर, हम डॉलर नहीं थे, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो आज हमारा अस्पताल तैयार ना होता था। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्सपेट पाकिस्तानियों का, और ये बढ़ रहा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कभी कोई पैनिक या कोई ऐसी फिक्र या सोच कि यार ये 60 अरब रुपए साल के, कुछ भी ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से किसी मेजर डोनर ने एहतियात रोक दिए या कुछ इदारों की तरफ से एहतियात रुक गए, तो ये मरीज़ तो आना नहीं रुकेंगे, इनको तो इलाज देना है। वो तो किसी को ये नहीं कह सकते कि आप जाइए वापस। तो कभी फिक्रमंदी या परेशानी होती है? फिक्रमंदी एटलीस्ट मैं अपने तौर पर मैं अपनी ले सकता हूँ, और कुछ साथी मेरे भी जो होंगे, क्योंकि फिक्रमंदी मुझे तो नहीं होती, क्योंकि मेरा जो यकीन है ना वो यहाँ से है अल्लाह के ऊपर, कि अल्लाह ने करना है, यहाँ तक पहुँचाया है। जबकि सब कहते थे नहीं पहुँच सकता, आज सब कन्फेस करते हैं। तो वो यकीन है। लोग कहते हैं मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आपको नींद कैसे आती? जी, अरबों रुपए का बजट है, 14,000 एम्प्लॉई हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि मेरे घर वालों को मुझसे एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका हूँ। अल्लाह अकबर। इतने सुकून की नींद आती है। मेरा पैसा नहीं है, मैं कर नहीं रहा, जो ज़ात करती है वो न सोती है, न उसके पास सिफर की हद है। उसने कहना कुन फयाकुन और हो जाना है। क्या कहना, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये सवाल आपसे करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को अंदाज़ा हो किस तर्ज के पेशेंट होते हैं, किस किस्म की बीमारियों में लोग मुब्तला हैं, और स्पेसिफिकली आपके दिल के करीब ऐसा कौन सा शोबा है या कौन सा ऐसा सेहत का ऐसा सेक्टर है कि जिनके मरीज़ों को देखकर, उनको तंदुरुस्त होते हुए देख के आपको ज़्यादा इत्मीनान महसूस होता है? वो जो दिल के करीब है, और मैं डॉक्टर होते हुए भी उस जब डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सकता, क्योंकि अपने बच्चों के चेहरे आपके अपने नज़रों में, अब तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनकी नज़रें आ जाती हैं।
ये बच्चों के कैंसर का हॉस्पिटल का जो यूनिट है, उन बच्चों को देखकर वो जिस तरीके से वो, और उसके ऊपर हम पूरे उसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरब, यूएई, जहाँ पर वर्कर क्लास के पास, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो सब आते हैं। उनका रहना सहना खाना, उनका स्कूल भी, हम स्कूलिंग भी वहाँ से कराते हैं। मुझे जब रोज़ मैं जाता हूँ सुबह, तो एक जब में गफ़ीर होता है, उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू होते हैं और ये शुक्राने के होते हैं कि क्या हम गुनहगार इस काबिल थे कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम हमसे ले लिया। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, तो एक अफ़गानी बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, और कैंसर के बच्चा, सर के बाल उड़े हुए थे उसके, और उसने मुझे देख लिया और शायद पहचान भी लिया। वो जिस तीर के से तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ के आया ना, और मैंने उसको झुक के उसको अपनी गोद में लिया उसने, तो जिस तरीके से उसने मुझे भींचा था, तो मुझे अपना बच्चों का बचपन याद आया, जिस तरह वो मुझे कभी खुशी में करते थे। तो वो खुशी जो है ना, और वो उसको आप ये अरबों खरबों से भी नहीं पा सकते, आप नहीं पा सकते। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी स्पेसिफिक बात, कोई अपील, कुछ कहना चाहें जो लोग इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? बहुत लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत लोग, जिस तरह मैंने कहा ना कि आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का माशाल्लाह, तो आपकी बात की बड़ी तासीर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ज़रूर। मेरा यही है कि देखें, अभी भी इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को इलाज की सहूलियत मैसर नहीं है, और ये सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। तो उन तक पहुँचना, वो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टरेट की डायरेक्टर है, उनका वो है, नारा है, रीच द अनरीचेबल। हाँ, तो वो चाहे जिस तरीके से जाना हो, वो ऐसी ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। अफ़गानिस्तान, ये बलूचिस्तान के बहुत ऐसे इलाके हैं, इस वक्त गवादर, सुई, डेरा बुख्ती, नोकंडी, रेकोडिक के इलाके में, उन जगहों पे जाना जो कि 11 घंटे ऑफ द रोड आप कोयटा से पहुँचने में लगते हैं आपको, तो वहाँ पर जाना, तो ये अभी बहुत हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो हमसे सवाल तो होगा, हमसे सवाल होगा कि हम जो कर सकते थे हमने किया या नहीं। सब लोग अपना हिस्सा डालें, थोड़ा डालें। किसके छोड़े में कितनी बरकत है। वो जंग तबूक का आपको वाक़या याद है सबको, जिस तरीके से एक साहबी की खजूर सब पे भारी थी, तो किसकी कितने पे कितना बरकत है। बस हम अपना हिस्सा डालते चले जाएंगे, और यकीनन अब वो कहते हैं ना कि वहाँ जाकर इसका अजर मिलेगा, यहाँ ही मिल जाता है। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, बंदे का कर्ज नहीं रखता। अल्लाह के अदल का और इंसाफ का तकाजा ये है कि यही आपको यहाँ भी और ज़ाहिर है बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो भाई हमने अपनी किसी कोशिश की है। आज पहले ही प्रोग्राम में डॉक्टर बारी साहब को मदऊ करके इंडस का नाम, इंडस का काम, हमारी क्या किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बस हम यही गुजारिश कर सकते हैं आज माह मुबारक के पहले दिन में, इब्तिदाई अयाम में, इब्तिदाई सातों में, कि हम सब मिलकर डॉक्टर बारी साहब के, बल्कि डॉक्टर बारी साहब तो एक वसीला है, इंडस के हाथ को मजबूत करें, और ये इदारा इसी तरीके से लिटरली लाखों, लिटरली मिलियंस लोगों की खिदमत करता चला जाए। बल्कि एक पहलू पे हमेशा बात होती है, हमसे कहा भी जाता है यार आप हमेशा तनकीद ही करते हैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन ये वो मौका है, हम कहते हैं जहाँ अच्छा लगेगा हम तारीफ़ करें, हम क्यों शर्माएंगे, करेंगे। तो बारी साहब से हमने हमेशा यही सुना कि हुकूमत सिंध का भी इनको तावन भरपूर रहा और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में रहा। तो इस बात पे सिंध हुकूमत की बहुत तारीफ़ है, बहुत खराज तहसीन। और न सिर्फ इंडस के हवाले से बल्कि बहुत सारे इदारे हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी लोग जो रहे हैं कहते हैं नहीं गवर्नमेंट का अच्छा तावन हासिल है। तो ज़बरदस्त, अल्लाह करे तावन और आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच बारी साहब, अल्लाह ताला आपसे यूँ ही काम लेता रहे इंशाल्लाह, और चलता रहे ये कारवां इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियों की सूरत में डॉक्टर बारी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो कुछ कर रहे हैं कौम के लिए। इंशाल्लाह ऐसे ही सिलसिला जारी रहे। एक वक्फे के बाद उलमाए कराम के साथ हमारी नस्ल इंशाल्लाह आ रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद उलमाए कराम आपके सवाल और उनके जवाब।